Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 16th lecture in the lecture series of Geomorphology, in which we are going to talk about the insolation and the heat budget. What are the insolations and what are the important aspects related to it? What is albedo and what is the albedo of the Earth? The absorption and the emission spectrum of radiations that of the Earth. But before that, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. Which type of plates are more heavier, the oceanic or the continental? What is the reason behind the formation of the convectional and the thermal currents and how they are responsible for the motion of the plate tectonics? Guys, you have to write down the difference between the central type and the fissure type of eruptions and write down the name of the margin on which shallow foci earthquakes takes place. If you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. Let's talk about the insolation. They are basically the incoming solar radiations. As they are coming on the surface of the earth, that's why they are known as the incoming. And they are coming from the head of the solar family, that's why they are known as the solar radiations. And guys, one thing you have to keep in mind is that energy always travels in the form of waves and radiations. That's why the energy which is coming from the sun is known as the solar radiations. So guys, the short form of incoming solar radiations is insolation. तो guys, basically हमें पता है कि sun is the ultimate source of heat and light for all the planets and the natural satellites. लेकिन अगर किसी चीज़ के पास एनर्जी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा. सन के पास भी तो कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही होगी. So basically the energy at the sun is coming from the inner part of the sun, which is known as the core. And a process which is being carried out is known as the nuclear fusion. तो बेसिकली हमारे इनर पार्ट ऑफ द सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन. गाइस, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होता है फ्यूजन एंड एक होता है फिजन. फ्यूजन में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जब आपस में मिलती हैं और एक चीज़ बनाती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन फिजन में उल्टा होता है, जब एक चीज़ टूटने पर बहुत चीज़ें बनती हैं उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है. तो जो प्रोसेस हमारे सन में हो रहा है उसे बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि उसमें बेसिकली बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं एंड इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी रिलीज होती है. एंड इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कोर का टेम्परेचर नियरली 27 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है. एंड गाइज, सन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सन इज मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड द हीलियम. एंड ये ही रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए. एंड एज अ रिजल्ट हमारे सन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है. तो गाइस, हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग हीट सोर्स से दूर जाते हैं बेसिकली हीट कम होती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है. ऐसा ही कुछ हमारे सन में होता है. अगर कोर का टेम्परेचर 27 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है तो जैसे जैसे हम लोग कोर से आउटर लेयर्स में आते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. लेकिन सडनली जब हम लोग आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन कोरोना में पहुंचते हैं तो वहां पर टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज हो जाता है एंड वो पहुंच जाता है 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड्स पर. तो इसका रीजन अगर आपको नहीं पता है देन यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन द सन. तो गाइस, अभी हमने देखा कि सन के पास तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है. तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है. अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेडिएशंस की वेवलेंथ कम हो जाती है. तो एनर्जी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है. तो गाइस, बेसिकली सोलर रेडिएशंस को हम लोग शॉर्ट वेव्स बोलते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ही होती है कम. क्योंकि हमारी सोलर रेडिएशंस की एनर्जी ज़्यादा थी तो उनकी वेवलेंथ हो गई कम और उन्हें हमने बोल दिया है शॉर्ट वेव्स. तो गाइस, हमने देखा कि सन का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारी अर्थ का टेम्परेचर तो बहुत कम है. इवन गर्मियों में जब टेम्परेचर 40 डिग्रीज पर पहुंच जाता है तब भी हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है. तो अगर इतनी ही एनर्जी हमारे अर्थ पर पहुंचनी शुरू हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. लेकिन
होता क्या है कि जो सन के पास एनर्जी है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स यूज़ करते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कितनी एनर्जी हमारे अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है वो है बेसिकली 1 out of every 2 billion units of energy that is present at the sun। मतलब अगर सन के पास 2 बिलियन कैलोरीज ऑफ एनर्जी है तो हम तक जो एनर्जी पहुंचती है वो सिर्फ 1 कैलोरी होती है। एंड इसी एनर्जी का हमारा 1% यूज किया जाता है हमारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा खाना बनाने के लिए। एंड गाइज इतनी ही हमारे लिए सफिशिएंट होती है। तो अगर सन के पास 2 बिलियन कैलोरीज थी तो हमारे अर्थ के पास सिर्फ 1 कैलोरी है एंड उसका भी 1% ही यूज किया जाता है हमारे प्रोड्यूसर्स के द्वारा हमारे लिए और खुद के लिए खाना बनाने में। तो गाइस होता क्या है कि दिन में जब सन ओवरहेड होता है तो उस टाइम हमारा अर्थ का सरफेस बेसिकली सिंक का काम करता है एंड इन सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। लेकिन गाइस रात को जब सन ओवरहेड नहीं होता, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो उस दौरान हमारे अर्थ का सरफेस हीट सोर्स बन जाता है एंड वो रेडिएशंस को एमिट करना शुरू करता है। तो जो रेडिएशंस सन से आई उन्हें सोलर रेडिएशन बोला और जो रेडिएशंस हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट दैट इज द अर्थ से एमिट होंगी उन्हें बोला जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। लेकिन जैसे कि ये दिन में एब्जॉर्ब होती हैं एंड रात में एमिट होती हैं तो इस दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सोलर रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की एनर्जी कम होने के कारण उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को लॉन्ग वेव्स भी बोला जाता है। तो गाइस हुआ क्या कि दिन में सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई एंड रात में हमारी अर्थ के सरफेस ने एमिट की टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो गाइस इसमें एनर्जी लॉस हुआ। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये पूरा का पूरा लेक्चर देखो एंड दोबारा से इसको डिलीवर करो तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिस करोगे। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हमारे अर्थ भी कर देती है, जिसकी वजह से हमारी सोलर रेडिएशंस शॉर्ट वेव्स होती हैं तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बन जाती हैं लॉन्ग वेव्स। नाउ कमिंग टू द प्लैंक्स लॉ। गाइस हमने प्लैंक्स लॉ के बारे में 9th और 10th क्लास में पढ़ा था कि कैसे शॉर्टर वेव्स की पेनिट्रेशन पावर होती है बहुत ज़्यादा। तो अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि एनर्जी और हमारी पेनिट्रेशन पावर में क्या रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ और एनर्जी में तो रिलेशन है कि वो दोनों इन्वर्स होती हैं। लेकिन गाइस क्या होता है कि जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की एनर्जी होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर हो जाती है। तो गाइस जैसा कि अगर हम लोग एक बॉल को थ्रो करें तो क्या वो वॉल में पेनिट्रेट होगी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग शूट करें, राइफल से एक बुलेट फायर करें तो वो आसानी से हमारी वॉल में पेनिट्रेट हो जाती है, क्योंकि राइफल बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देती है हमारी बुलेट को, जिसकी वजह से उसकी पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम लोग मैन्युअली किसी बॉल को फेंकेंगे तो हम उसको इतनी फोर्स से नहीं फेंक सकते कि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाए। तो एनर्जी और पेनिट्रेशन पावर में डायरेक्ट रिलेशन है एंड हमारी एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्स था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ और पेनिट्रेशन पावर में भी हमारा रिलेशन हो जाएगा इन्वर्स, जिसकी वजह से अगर किसी रेडिएशंस की वेवलेंथ कम है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी सोलर रेडिएशंस की वेवलेंथ तो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमने उन्हें शॉर्ट वेव्स बोला। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से आसानी से पेनिट्रेट होकर हमारे अर्थ के सरफेस पर आ जाती हैं। लेकिन रात में जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एमिट होती हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हमारे एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट नहीं हो पाती एंड वो कैप्चर हो जाती हैं अर्थ के सरफेस में ही, जिसकी वजह से जितना टेम्परेचर बेसिकली रात को होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा होता है एंड इसे बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। हमारी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O, मीथेन, वाटर वेपर एंड सम फ्लोरोकार्बन्स। तो गाइस बेसिकली इनके कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग एक और जगह यूज करते हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन दैट एग्जाम्पल इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। पहली है स्पेसिफिक हीट। इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to increase the temperature of 1 gram of substance by 1 degree। मतलब अगर हमें 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए x कैलोरीज लगे तो हमारे वाटर की स्पेसिफिक हीट हो जाएगी x।
ऐसे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। तो गाइज इसे हम लोग रिवर्स भी देख सकते हैं कि अगर एक चीज़ का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री डिक्रीज करना हो तो उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे भी स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। सो बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। तो गाइस होता क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड बहुत कम है एज कंपेयर टू द वाटर, और जितनी जिस चीज़ की स्पेसिफिक हीट कम होगी उसका गर्म और ठंडा होना उतना ही आसान होता है। इसलिए दिन में हमारी लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो रात में ठंडी हो जाती है। तो दिन में जब सन ओवरहेड होता है, हमारी लैंड पर सन की रेडिएशंस पड़ती हैं, तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी, लाइट हो जाएगी एंड वो थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। तो बेसिकली सी तो ठंडा है हमारा क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, तो वहाँ से विंड्स ब्लो करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द लैंड एंड दिस इज नोन एज द सी ब्रीज। एंड रात में उल्टा होगा, हमारी लैंड बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी एंड जो हमारी वेव्स हैं, विंड्स हैं, वो बेसिकली मूव करेंगी लैंड से सी की तरफ, तो इन्हें बोलेंगे लैंड ब्रीज। सो हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लेस देन एज कंपेयर टू द वाटर। सो लैंड बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है एंड हो जाती है गर्म, जिसकी वजह से हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। लेकिन गाइज अगर ये उल्टा होता तो हमारी लैंड ब्रीज चलती दिन में एंड सी ब्रीज चलती रात को। नाउ कमिंग टू द सोलर कांस्टेंट, it is basically the amount or the number of calories which is being received by the upper part of the atmosphere of the earth। मतलब जितनी कैलोरीज हमारे अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में पहुंचती है उसे बेसिकली बोला जाता है सोलर कांस्टेंट। लेकिन गाइस जितनी एनर्जी बेसिकली अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में पहुंचती है उतनी हमारे अर्थ के सरफेस पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गाइस थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, कुछ स्कैटर हो जाती हैं और कुछ जब हमारे एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट होती हैं तो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाती हैं एंड उन रेडिएशंस का कुछ पार्ट ही हमारे अर्थ के सरफेस पर पहुँच पाता है। तो इसका मतलब जितनी रेडिएशंस हमारे अर्थ के सरफेस पर पहुँच पाती हैं वो बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर टू द सोलर कांस्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द इंसोलेशन। गाइस पहला तो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उतनी ही कम होगी हमारी इंसोलेशन, क्योंकि गाइस बेसिकली हमारे थर्मल इक्वेटर पर 0 डिग्री पर सन रेज फॉल करती हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है एंड हमें पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में इंसोलेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पोल्स, क्योंकि पोल्स पर पहुंचने के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंसोलेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट पोल्स पर टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड वहाँ पर वेजिटेशन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर सनलाइट एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। तो बेसिकली इंसोलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। गाइज आपने बचपन में एक चीज़ ज़रूर की होगी कि वो जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोप्स होते थे, हम उन्हें सन के सामने रख के एंड उसके सामने पेपर रख के पेपर को जलाते थे। तो उससे बेसिकली क्या होता था कि जो सोलर रेडिएशंस होती थी उनका एंगल कम हो जाता था, जिसकी वजह से वो एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती थी एंड इसकी वजह से हमारा पेपर जलना शुरू हो जाता था। सो अभी आपको समझ आ गया होगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड इंसोलेशन इनवर्स रिलेशन से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू द थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। गाइस हमने देखा कि जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर की थिकनेस होगी उतनी ही रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो पाएंगी स्पेस में, उतनी ही स्कैटरिंग होगी एंड उतनी ही एब्जॉर्ब होंगी हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ पर आने वाली इंसोलेशन हो जाएगी कम। तो थिकनेस और हमारे इंसोलेशन में भी रिलेशन हुआ इनवर्स, क्योंकि थिकनेस के कारण रिफ्लेक्शन होगी, स्कैटरिंग होगी एंड होगी एब्जॉर्प्शन। Now coming to the another factor that is basically the length of the day। तो length of the day के साथ कैसे है? तो गाइस बेसिकली होगा क्या कि दिन में हमारी सोलर रेडिएशंस होती हैं एंड इंसोलेशन तो दिन में ही होती है, क्योंकि जब सन ओवरहेड होगा सिर्फ तभी तो आ सकती हैं रेडिएशंस अर्थ पर। तो जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ द डे होगा उतनी ही ज़्यादा इंसोलेशन हो पाएगी। एंड गाइस होगा क्या कि जितनी ज़्यादा इंसोलेशंस आएंगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड अगर हमारे रात की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा गाइस
जब हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस इंक्रीज हो गई तो हमारी अर्थ का सरफेस बेसिकली ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा कि लेंथ ऑफ द डे ज़्यादा है तो इंसोलेशन ज़्यादा है, अगर लेंथ ऑफ द नाइट ज़्यादा है तो हमारी इंसोलेशन कम हो जाएगी। मतलब लेंथ ऑफ द डे और इंसोलेशन में डायरेक्ट रिलेशन है। गाइस एक और चीज़ होती है कि डार्कनेस ऑफ द सब्सटेंस। जितनी भी किसी चीज़ की डार्कनेस ज़्यादा होती है उसमें बेसिकली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। इसीलिए गाइस क्या होता है कि हम लोग गर्मियों में ब्लैक कपड़े पहनना कम पसंद करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर में सोलर रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे विंटर में कपड़े ज़्यादातर डार्क कलर के होते हैं, क्योंकि उनमें बेसिकली रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती हैं एंड एज अ रिजल्ट दे विल कीप अस वार्म। तो हमने देखा कि डार्कनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसुलेशन। गाइज अभी आपको पता है कि अर्थ इज द ब्लू प्लैनेट, ना तो उसका कलर ब्लैक है कि पूरी की पूरी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएं, ना ही वाइट है कि सारी रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएं। तो उसका कलर है ब्लू, जिसकी वजह से कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं तो कुछ हो जाती हैं एब्जॉर्ब। नाउ कमिंग टू द लैटिट्यूड। गाइस हमने देखा था कि थर्मल इक्वेटर पर रेडिएशन सबसे ज़्यादा होती है एंड पोल्स पर होती हैं सबसे कम। तो बेसिकली जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा इंसुलेशन होती जाएगी कम। मतलब जैसे जैसे एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर, तो वहां पर इंसुलेशन कम होगी। इसका मतलब लैटिट्यूड और इंसुलेशन में भी हमारा रिलेशन हो गया है इनवर्स। नाउ कमिंग टू द क्लाउड कवर। गाइज आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत क्लाउड्स हैं, ट्रोपोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। आपको पता है कि जो ट्रोपोस्फेयर में है वो तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए होते हैं, लेकिन गाइज यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर वाले क्लाउड्स का क्या नाम है। तो गाइज जैसे जैसे जो हमारा क्लाउड कवर है वो इंक्रीज होगा तो बेसिकली रेडिएशन ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू होंगी। मतलब अगर क्लाउड कवर नियरली 20 किलोमीटर का है तो इससे 20% रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक होंगी, एंड अगर ये बेसिकली 100 किलोमीटर्स पहुंच जाए तो नियरली 90% ऑफ द रेडिएशंस विल रिफ्लेक्ट बैक। इसका मतलब क्लाउड कवर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंसुलेशन। गाइज अगर आप इनको रिलेट करके इनमें रिलेशन ढूंढ के इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द एल्बिडो। आखिर एल्बिडो होता क्या है? बेसिकली गाइज एल्बिडो का मतलब होता है विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस का रिफ्लेक्ट बैक हो जाना। मतलब अगर किसी भी आप वाइट कलर पर कोई एनर्जी डालते हैं तो वो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, क्योंकि जो लाइट कलर्ड बॉडीज होती हैं उनकी एल्बिडो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो अगर हम लोग एल्बिडो ऑफ द अर्थ के बारे में बात करें तो बेसिकली होगा क्या कि जितनी सोलर रेडिएशंस बिना एब्जॉर्ब हुए हमारे अर्थ के सरफेस में रिफ्लेक्ट बैक हो गई उसे बेसिकली एल्बिडो बोला जाता है, एंड इट इज नियरली 2% ऑफ द सोलर रेडिएशंस। मतलब जितनी भी सोलर रेडिएशंस हमारे सन से आती हैं और हमारे अर्थ के सरफेस पर टकराती हैं उनका 2% रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो एल्बिडो का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडिएशंस विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। तो गाइस जो एल्बिडो ऑफ लैंड होता है वो बहुत कम होता है, सॉरी एल्बिडो ऑफ लैंड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। लेकिन हमने गाइस एक चीज देखी थी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लेस देन एज कंपेयर टू द वाटर, एंड एल्बिडो ऑफ लैंड इज मोर एज कंपेयर टू द वाटर। इसका मतलब हमारी लैंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक करेगी रेडिएशंस को विदाउट एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू द वाटर। एंड गाइस जितना जिस चीज़ का कलर लाइट होगा उतनी ही उसकी एल्बिडो ज़्यादा होगी, एंड हमारे जो डार्क कलर सब्सटेंस होते हैं वो तो उन्हें रिफ्लेक्ट कर लेते, बेसिकली उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जो लाइटर सब्सटेंस होंगे वो उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करेंगे जबकि डार्कर सब्सटेंस उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे। तो बेसिकली लाइटर सब्सटेंस का एल्बिडो हो जाएगा ज़्यादा एंड हमारे डार्कर सब्सटेंस का एल्बिडो हो जाएगा कम। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द हीट ट्रांसफर। पहली चीज़ है कंडक्शन। गाइस कंडक्शन का मतलब अगर किन्हीं भी दो चीज़ों में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है उन्हें हम लोग कॉन्टेक्ट में रख दें तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट
टू द लो टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग बेसिकली रूम के एक साइड पर हीटर जलाते हैं तो वो बेसिकली धीरे धीरे डिफ्यूज होते होते पूरे रूम को गर्म कर देती है, क्योंकि बेसिकली जो हमारी हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हाई टेम्परेचर एरिया टू द लो टेम्परेचर एरिया। सो बेसिकली इस चीज को बोला जाता है कंडक्शन। मतलब अगर किन्हीं दो चीजों को हम लोग कांटेक्ट में रख दें एंड उनमें हीट ट्रांसफर हो तो इस प्रोसेस को कंडक्शन बोलेंगे। नाउ कमिंग टू द रेडिएशन, अगर किसी चीज को डायरेक्टली गर्म किया जाए, अगर आप किसी भी चीज को डायरेक्टली किसी फ्लेम पर रख दें, किसी आग पर रखें, वो डायरेक्टली गर्म हो रहा है, तो इस हीट ट्रांसफर को रेडिएशन बोला जाता है। नाउ कमिंग टू द कन्वेक्शन। गाइस कन्वेक्शन बेसिकली होता है हमारे फ्लूइड्स में, मतलब लिक्विड्स और गैसेस में। इसमें बेसिकली होता क्या है गाइस कि ये होता है वर्टिकल मूवमेंट। मतलब जैसे कि हमें पता है कि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम लोग अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस जाते हैं। मतलब गाइस होता क्या है कि अगर हम लोग एक कैंडल जलाएं तो पहले टेम्परेचर सिर्फ उसकी फ्लेम के पास ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होना शुरू होता है। ये बेसिकली होता है कन्वेक्शन के कारण। सो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो कन्वेक्शन वर्टिकल हीट ट्रांसफर होता है एंड दूसरी चीज ये सिर्फ फ्लूइड्स में होता है, दैट इज इन द लिक्विड्स एंड द गैसेस। नाउ कमिंग टू द एडवेक्शन। कन्वेक्शन हो रहा था वर्टिकल फॉर्म में एंड हमारा एडवेक्शन होता है बेसिकली हॉरिजॉन्टली। मतलब जो हमने हीटर वाली एग्जांपल देखी थी तो वो बेसिकली जो हीट डिफ्यूज हो रही थी वो बेसिकली एयर के थ्रू हो रही थी, तो उसको हम लोग एडवेक्शन भी बोल सकते हैं। गाइज इसी के कारण विंड्स ब्लो करती हैं, क्योंकि जहां पर हाई टेम्परेचर एरिया है वहां से विंड ब्लो करना शुरू करती है, अपने साथ कुछ हीट एनर्जी सब कुछ लेकर लो टेम्परेचर एरिया की तरफ चलती हैं एंड दीज आर द रीजंस क्यों हमारे यहाँ पर विंड्स ब्लो करती हैं। नाउ कमिंग टू द हीट बजट। गाइज बजट का मतलब क्या होता है, कितना मेरे पास आया और कितना मैंने स्पेंड किया। मतलब कितनी मेरी अर्निंग है और कितना मैंने स्पेंड कर दिया और कितनी मेरे पास सेविंग हो गई, तो इसको बेसिकली हम लोग बजट बनाना बोलते हैं। ऐसे ही हीट बजट का मतलब क्या होता है कि कितनी हीट हमारे अर्थ के सरफेस पर आई और कितनी हीट वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। मतलब जो हमारी हीट आती है वो तो सोलर रेडिएशंस के फॉर्म में आती है एंड जो एमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं। लेकिन गाइज आपको पता है कि एवरेज जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो तो नियरली सेम रहता है, तो नियरली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में ये बेसिकली थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज होता है। लेकिन गाइज जैसा कि आपको पता है कि अभी सबसे मेजर कंसर्न बेसिकली क्लाइमेट चेंज बन चुका है, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है। तो गाइज ये बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि हीट बजट हिल गया। मतलब जितनी हीट एनर्जी बेसिकली हमारे अर्थ के सरफेस पर आ रही है उतनी ही एमिट बैक नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन गाइज ये बहुत ज़्यादा स्लो है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी बेसिकली हमारे अर्थ के सरफेस पर आती है उतनी ही एमिट बैक हो जाती है। गाइज मतलब क्या होता है, जो हीट आती है वो बेसिकली कुछ तो रिफ्लेक्ट होती है, कुछ स्कैटर होती है, कुछ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है, कुछ हमारे अर्थ के सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है एंड रात को उल्टा होता है, अर्थ के सरफेस से एमिट होती है, हमारे कुछ एटमॉस्फेयर में कैप्चर होती है एंड कुछ इवन रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग इस हीट के बजट को कैलकुलेट करना शुरू करें, मतलब कितनी हीट आई और कितनी हीट गई, तो इसे बेसिकली बोला जाता है हीट बजट। एंड गाइज हीट बजट ऑफ अर्थ बहुत ही कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितनी हीट आती है उतनी ही बेसिकली निकल भी जाती है। सो गाइज अगर हम लोग सोलर रेडिएशंस के बारे में बात करें कि कितनी सोलर रेडिएशंस आती हैं, कितनी रिफ्लेक्ट बैक होती हैं एंड कितनी एब्जॉर्ब होती हैं, सो बेसिकली उसे देखने का एक तरीका है। तो गाइज एक तो ये चीज़ थी कि जो हमारी लाइटर ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी एल्बिडो पावर ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर लाइट कलर्ड सब्सटेंस पहले क्या है, हमारे ग्लेशियर्स, क्योंकि उनका शाइनी सरफेस होता है जिसकी वजह से जो भी उन पर रेडिएशंस आती हैं वो बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो 2% तो डायरेक्टली आप एल्बिडो का डिक्रीज कर दो, मतलब जितनी सोलर रेडिएशन आई उनका 2% तो एल्बिडो के थ्रू लूज हो गया। उसके बाद अगर हम लोग 17% की बात करें, मतलब अगर सोलर कांस्टेंट हमारा मान लो 100 है तो उसमें से जो 17 है वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं स्पेस में,
क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग बात करें तो 6% है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब कुछ थोड़ी से एब्जॉर्ब हो गई, उनकी रेडिएशंस की वेवलेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो गई। तो बेसिकली क्या हुआ, 17% थी वो तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो गई एंड हमारी 6% स्कैटर्ड फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक हो गई। उसके बाद जो 14% है, मतलब अगर हम लोग गाइस देखते हैं कि सोलर कांस्टेंट को 100 ले तो 17 जो कैलोरीज थी वो तो बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक हो गई, 6% भी रिफ्लेक्ट बैक हो गई स्कैटर्ड फॉर्म में। उसके बाद जो 14 रेडिएशंस थी वो बेसिकली हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। और उसके बाद गाइस क्या हो रहा है कि जो 34% है वो डायरेक्टली हमारा अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि कुछ सोलर रेडिएशन तो डायरेक्टली हमारे अर्थ के सरफेस पर आ जाती हैं। लेकिन गाइस बेसिकली बहुत क्लाउड्स हैं एटमॉस्फेयर में, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से वो रेडिएशन स्कैटर ज़रूर हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हमारे अर्थ के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितनी एब्जॉर्प्शन हुई, 34% तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हुई और 17% एब्जॉर्ब हुई इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशंस। तो बेसिकली 51% डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गई। और अगर हम लोग 14% जो हमारे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की थी उसे भी ऐड ऑन कर दें तो बेसिकली 65% ऑफ द सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रही हैं हमारे अर्थ में एंड 35% रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। लेट्स रिवाइज अगेन। 17% directly reflected back to the space, 6% are reflected in the scattered form, 14% are absorbed by the atmosphere, 34% absorbed by the earth's surface, उसके बाद 17% absorbed by the earth's surface in the scattered form and 2% lost in the form of albedo. Albedo का मतलब without any absorption and just the reflection. नाउ कमिंग टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अभी रात को तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है गाइस। हमने देखा था कि 14% जो सोलर रेडिएशंस थी वो बेसिकली एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सिर्फ 6% हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। 17% जब हमारे एटमॉस्फेयर से पास होती हैं तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे स्पेस में चली जाती हैं एंड गाइस 48% तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, क्योंकि गाइस बेसिकली जब हमारे अर्थ का सरफेस इन रेडिएशंस को एमिट करेगा तो ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी की वेवलेंथ कम हो, हर किसी की वेवलेंथ ज़्यादा हो। तो जिनकी बेसिकली वेवलेंथ कम होगी, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करते हुए हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएंगी। मतलब 48% तो डायरेक्टली स्पेस में गई एंड उसमें से भी हमने देखा कि 17% हमारी स्कैटर्ड फॉर्म में स्पेस में चली गई, तो 10% टर्बुलेंस की फॉर्म में चली जाएगी। क्योंकि गाइज आपको पता है कि हमारी फ्रिक्शन लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, उसमें बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से जो टर्बुलेंस होती है उसमें 10% ऑफ द एनर्जी लॉस्ट हो जाती है एंड हमारी 19% जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि पानी जब यहाँ से इवेपोरेट होता है अर्थ के सरफेस से एंड वहाँ पर क्लाउड बनता है एंड वहाँ से प्रेसिपिटेशन होती है, तो इस दौरान 19% जो हमारी एनर्जी है वो बेसिकली लॉस्ट हो जाती है। तो गाइज हमने पीछे देखा था कि नियरली 51% हमारा अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा था और इसमें हमने देखा कि उसमें से जो 48 है वो तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है हमारे स्पेस में। तो बेसिकली इससे हीट बजट बना रहता है। तो हमने लेट्स रिवाइज अगेन गाइस। इसमें था 17% रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, 6% रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इन द स्कैटर्ड फॉर्म, 14% एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, 2% लॉस्ट एज एल्बिडो, 34% directly absorbed by the earth and 17% absorbed by the earth in this scattered form. नाउ अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की बात करें तो 6% हमारी रिफ्लेक्ट बैक, 6% एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, उसके बाद 17% रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इन द स्कैटर्ड फॉर्म, 48% तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं स्पेस में, उसके बाद 10% हमारी टर्बुलेंस में लॉस हो रही हैं एंड 19% इज लॉस्ट इन द कंडेंसेशन. So guys, if you enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you.